वो ऐसा था कि बंडल उठा उठा के आपको घर पे देना पड़ता था। तो मतलब मैं एक छोटा टेम्पो में बैठने का, वहाँ पे कम से कम 1000 बंडल डालने का, हम 4-5 बच्चे लोग 17 के 18 की उम्र पे, और मैं ये 3 महीना करता था और तभी सैलरी मिलती थी 1000 रुपया। और मुझे याद है आज भी, मैं उस बंदा जैसे वो आदमी बैठता रहता था, मैं 12-12 लिटरली, आई एम नॉट ओवर एग्जैचुरेटिंग, 12 घंटा खड़ा रहता था सीखने के लिए वो बटन कौन सा दबा रहा है। व्हेन यू गेट अ राइट अपॉर्चुनिटी, first thing you have to prove yourself. Now why you have to prove yourself? Again, no background, no education background. I No godfather. no godfather. Yes. I have to prove in every step, because क्या क्या कभी कभी हम कुछ बड़ा चीज करने जाते हैं ना, ये कर पाएगा क्या, जज करने वाले बहुत है हमारे पीछे. Yes. So in 9 years of career, I had a phenomenal journey. I worked with all the top celebrities at that time. Mr. Amitabh Bachchan, I worked with Shah Rukh Khan. You name it, all the top guns that time. From 2000 to 2009, I had a great experience, and I'm blessed because ऐसे opportunity काफ़ी rare लोग को मिलता है with no education background. मेरे हालत इतनी ख़राब थी, मैं मुलुंड वेस्ट का मैकडोनल्ड में जॉब में इंटरव्यू देने के लिए गया था. I had such a bad situation. When you're working in 15 years of corporate, और जब entrepreneur बनते, सबसे पहला घर वाले पूछते तू सही कर रहा है क्या? हाँ. Whatever you're doing, you're doing it right? Yes. तू इतना अच्छा कंपनी में काम करने वाला बंदा, तू ये कर रहा है, तू जाके न्यूट्रिशन बेचेगा, फिटनेस के बाद, फिटनेस का एफबी मालूम है क्या? वो सवाल ना पहले अपने पे आने से पहले वो लोग हम पे पूछे, देन वी स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्फ. मैं बता रहा हूँ, मेरे पूरे जर्नी में मेरा 45 ईयर्स होने गए, मेरे 11 साल का फिटनेस इंडस्ट्री का प्रोफेशन और 15 साल मेरा जॉब का प्रोफेशन. आपको क्या लगता है मैंने परफेक्ट डिसीजन सब कुछ लिया है? यू टेक द डिसीजन एंड मेक इट परफेक्ट. Hello and welcome to the first step where we talk about real journeys, real struggles and real transformations. I am Varsha and every month I bring you people who did not wait for the perfect plan but took imperfect steps and built meaningful lives. Today's guest truly represents this idea. Society often tells us that higher education guarantees success. लेकिन जिंदगी हमें बार बार ये बताती है कि सक्सेस डिग्री से नहीं, डिटर्मिनेशन से आता है. Our guest started working at just 17 years of age as a courier boy. He climbed the corporate ladder in the media industry, reached a strong position, yet felt something was missing. Long hours affected his health, and that moment became a turning point. What began as a personal fitness journey slowly turned into a mission to transform lives. Today, he is a respected consultant in the nutrition and wellness industry with over 11 years of experience, mentoring not only clients but also future entrepreneurs in this space. It's my pleasure to welcome Mr. Rajesh Shetty to the first step. Rajesh sir, welcome to the first step. I want to ask you that you started working at just 17 as a courier boy. When you look back, what pushed you to start so early in life? Okay, first of all, Varsha ma'am, thank you so much for inviting me over here. And It's my pleasure, sir. thank you so much. And let me tell you one thing, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, और जैसे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, जो पॉडकास्ट का जो नाम है फर्स्ट स्टेप, एक्चुअली लाइफ में हर इंसान पहला स्टेप लेना बहुत जरूरी है. एंड दिस इज, आई कैन से, ये मेरा पहला फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द पॉडकास्ट. एंड मैं कहना चाहता हूँ, ऑलवेज अ मैनिफेस्ट था मेरा कि एट द एज ऑफ वेरी अर्ली, जब मैं अपना बोलते ना बचपन में हम लोग सोचते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ फेमस इन लाइफ, एंड कि कहीं ना कहीं मुझे मैगजीन में आना था. बोलते ना एक वाइल्डेस्ट ड्रीम था कि आई वॉन्ट टू बी रिकग्नाइज, पीपल शुड नो अबाउट मी, हु आई एम. It's not about the motivation, it's about I want to inspire with my story. So first of all, thank you for inviting me over here. जैसे कि to your question, first step, the thing is that कि 17 की उम्र में मेरी जर्नी ऐसी है कि मैं कांजूरमर में born and brought up, एंड मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ. मैं 3 भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ. तो प्रॉब्लम मेरा ये था कि घर वाले को लगता है, एक्चुअली व्हेन यू गो 30-40 ईयर्स बैक, हमारा ऐसे कल्चर है कि पढ़ा लिखा लोग होना चाहिए, एंड मैं घर का बड़ा हूँ, तो बहुत उम्मीद था मेरे डैड को, मेरे पेरेंट्स को कि ऑब्वियसली लड़का पढ़ेगा, बड़ा होगा और बहुत कुछ करेगा. बट अनफॉर्चुनेटली आई एम हाई स्कूल ड्रॉप आउट. मैंने अपना एजुकेशन कभी कंप्लीट ही किया नहीं, एंड इसके वजह से कहीं ना कहीं, एंड मेरे डैड हमेशा कहते थे कि बेटा तू पढ़,
आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, बट अनफॉर्चुनेटली वो बोलते हैं ना बुद्धि, बैल की बुद्धि वो होता है, तो उस चक्कर में आई वॉज लुकिंग फॉर माई समवेयर कि कहीं ना कहीं शुरुआत करूँ मैं. एंड ऑल थैंक्स टू माई डैड. डैड ने बताया देख कुछ कर नहीं रहा है, एटलीस्ट यू स्टार्ट दैट समर वेकेशन के टाइम पे 3 महीने का रहता है कोर्स, वो तू कर ले. एंड आई स्टार्टेड माई फर्स्ट एज अ कुरियर येलो पेजेस. उस जमाने में 96 97 में येलो पेजेस होता था. अभी तो बहुत सारे चीज़ है, तो वो ऐसा था कि बंडल उठा उठा के आपको घर पे देना पड़ता था. तो मतलब मैं एक छोटा टेम्पो में बैठने का, वहाँ पे कम से कम 1000 बंडल डालने का, हम 4-5 बच्चे लोग 17 के 18 के उम्र पे, और मैं ये 3 महीना करता था, और तभी सैलरी मिलती थी 1000 रुपया. अभी वो 1000 रुपये में घर के 5 लोग, डैड वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर, उसमें से मैं और मेरे भाई और बहन मुझे पढ़ते थे. सो आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प माई फैमिली मेम्बर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट बोलते हैं ना कि एट द एज ऑफ 17 यू ऑलवेज हैव वन ड्रीम, इज दैट नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. मुझे कुरियर बॉय तो बनना नहीं था, बट बिकॉज मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ऐसा है कि मुझे क्लर्क की भी कोई नौकरी देगा नहीं. कभी कभी कहते हैं ना कोई एक इंसान आता है आपके पीछे या साथ में कि भाई तेरा रास्ता ये है, तुझे यहाँ पे जाना है. सो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट वन पर्सन, वन चांस, जहाँ पे मुझे कोई ना कोई हेल्प करे. एंड ऑल थैंक्स टू माई डैड. मेरे डैड ने मुझे वो मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए. मतलब इसका मतलब ये है कि अन्ना कि आपका जो बैकग्राउंड है वो देखकर सामने वाला इंस्पायर हो सकता है कि कुरियर बॉय आज यहाँ पे फिटनेस कोच के तौर पे बैठा है. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट अन्ना. थैंक यू सो मच. You later reached a good position in the media industry. What was your experience on going from a courier boy to the media industry? तो ये जर्नी ऐसी थी बिकॉज जैसे ही वो 3 मंथ्स का इंटर्नशिप था कुरियर बॉय का, जहाँ पे बिकॉज उसके बाद वो लोग उसके बाद वो बैच को बंद कर देते. नाउ बिकॉज मेरे अंकल मीडिया में थे, तभी DD1 DD2 था, और हमेशा मुझे लेके जाते थे ऐसे देखने के लिए क्या हो रहा है. तो इतना बड़ा सेट, टेक्निकल इक्विपमेंट था, एंड आई वाज वेरी ग्लूड, वेरी इंक्लाइन टू दैट थिंग, लाइट्स, गैजेट्स, सेटअप. तो मैंने अंकल को एक बार बोला, अंकल मुझे ये सीखना है. द एज ऑफ 17-18 वो एक एज होता है. 17 के टाइम पे ना, आइदर वन यू आर नॉट एजुकेटेड, वहाँ पे ऐसा फेज होता है जहाँ पे आप सही रास्ते निकल जाते हो या गलत रास्ते निकल जाते हो. एंड दैट इज द प्लेस, वहाँ पे दैट इज द टाइम एंड दैट इज द एज वेयर कभी कभी क्या बोलते हैं, बिकॉज माई पेरेंट्स आर नॉट एजुकेटेड एंड मैं कुछ भी कर सकता था. बिकॉज बचपन से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिमाग में इतना बैठा है ना, मुझे वो गलत जगह पे जाना ही नहीं था. तो जब मेरे अंकल ने मुझे बताया कि देख तू करना है तो ये कर सकता है, आई गॉट अपॉर्चुनिटी ऑल थैंक्स टू माई डैड. VT में एक एक स्टूडियो था जहाँ पे इंटर्न ट्रेनिंग के हिसाब से मुझे बुलाया था. वहाँ पे मैं एक साल मैंने विदाउट एनी सैलरी मैंने काम किया. और मुझे याद है आज भी, मैं उस बंदा जैसे वो आदमी बैठता रहता था, मैं 12 लिटरली आई एम नॉट ओवर एग्जैचुरेटिंग, 12 घंटा खड़ा रहता था सीखने के लिए. वो बटन कौन सा दबा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो लाइट्स कैसे है. रात को मैं कभी कभी तो मुझे याद मेरे जेब में 10-20 रुपए भी नहीं होते थे, मैं वहाँ पे रात को रुकता था, बिकॉज मुझे पता नहीं अगर मैं घर जाऊँगा वापस कैसे आऊँगा, बिकॉज वी आर नॉट अर्निंग, माई डैड वॉज नॉट अर्निंग दैट मच. बट वॉट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर मी इज दैट आई वांट टू मूव अहेड समवेयर इन लाइफ. वो 2 साल मैंने ट्रेनिंग के बाद, बिकॉज माई वर्क, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कितने स्किल्स इनफ हो, दैट इज इंपॉर्टेंट. हमें बोलते हैं ना, यू हैव टू लर्न मोर देन वन स्किल्स इन लाइफ. हमको लगता है हमारे पास एक ही स्किल्स है, अरे यार इसके आगे कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज हमने वो एक बाउंड्री बना के रखा है, हमने एक ब्लॉक बना के रखा है, नहीं मेरा आई कैन डू ओनली दिस मच, मेरे में टैलेंट नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि आप जब आए थे, मुझे याद है आप 10 पुशअप मारते थे, 20 पुशअप मारते थे, अभी आप 100 पुशअप मारते हो और लगता है ओ आई हैव डन दिस, बिकॉज समथिंग ना समवेयर हमने अपने आप को लिमिट करके रखा है. सो मुझे ऐसा लगा नो नाउ इट्स टाइम. सो मैंने अपने आप को इतना स्किल्स बनाया जहाँ पे मुझे मालूम था कि आई कैन डू द बेस्ट. एंड ये स्किल्स को मेरे टीम मेंबर को एक पता चला कि बॉस ये बहुत अच्छा काम करता है. स्टार टीवी उस वक्त इंडियन हिंदी GC आ रहा था, स्टार टीवी जब ये 2 शो आ रहे थे 90s में, ये बात है 1999-2000 में स्टार ऑलरेडी आ चुका था. पर हिंदी चैनल वॉज नॉट लॉन्च, इट वॉज एन इंग्लिश चैनल. और 1999-2000 में 2 शो आ रहे थे, क्योंकि सास भी कहीं बहू थी एंड कौन बनेगा करोड़पति. ये 2 शो आ रहे थे एंड किसी ने मुझे बोला कि वहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, व्हाई डोंट यू गो देयर. एंड वो कहते हैं ना कभी कभी दैट वॉज वन मोर स्टेप, बिकॉज आई मैनिफेस्टेड. जब भी मैं मरोन लाके यहाँ पे पास होता है, बोलते एक दिन इस कम, ऐसा नहीं बोला मैंने कि मैं जा सकता हूँ कि नहीं. आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ, आई विल वर्क हियर.
नाउ no education background, no qualification, nothing, but a thinking big is which is very important. तो मैं हमेशा एक चीज लोगों को बोलता हूँ, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए. ऑलवेज थिंक बिग इन लाइफ व्हाट यू डू. सो बैक टू योर क्वेश्चन एंड आई स्टेप इनसाइड. Yes. 9 You took years. that first step. I took that first step. Yes. Once as soon as reach, because स्टार का एक है, उस वक्त की बात करो 2000 में, एक इंटरव्यू कम से कम 15-20 दिन लगता था. आई क्लियर दैट मीटिंग और वॉट एवर इंटरव्यू इन 1 week एंड वॉज सिलेक्टेड. जैसे सिलेक्ट हुआ, आई वॉज इंट्रोड्यूस विद वन जेंटलमैन जिन्होंने मुझे कौन बनेगा करोड़पति का पहला शो मेरे हाथ में दिया. आई वॉज नॉट वन ऑफ द पर्सन. वहाँ पे 5-6 लोग थे, उसमें से मैं एक था. A big show, a big opportunity. That was one more step for me. Getting into big league, a big channel, and a big ocean, I can say. And जब वो वहाँ पे गया, now again, what is important is that when you get a right opportunity, first thing you have to prove yourself. Now, why you have to prove yourself? Again, no background, no education background. No godfather. No godfather. Yes. I have to prove in every step because क्या कभी कभी हम कुछ बड़ा चीज करने जाते हैं ना, ये कर पाएगा क्या. जज करने वाले बहुत है हमारे पीछे. Yes. आप समझ रहे, बहुत लोग हैं जज करते हैं हमें, ये करेगा कि नहीं करेगा. भले वो वेट लॉस हो, पॉइंट नंबर 1, भले आप कुछ स्टार्टअप कर रहे हो, भले आप कुछ, जैसे कि आप, आई नेवर थॉट दैट कि आप पॉडकास्ट करोगे, बिकॉज आई नो यू फ्रॉम 6-7 ईयर्स. आप आते थे, वर्कआउट करते, आपने बहुत सारी प्रोफेशन कर लिया एंड यू आर डूइंग सो गुड फॉर यू. मैं जब भी आपका पॉडकास्ट देखता हूँ, पॉइंट नंबर 1, आप दूसरी चीज़ भी कर रहे हो विच आई डोंट वांट टू नेम ओवर दैट. आपने मुझे 2-3 चीज़ बताई जो आप करने का आपका एम्बिशंस है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. सो दैट इज योर स्टेप व्हाट वी टेक. सो 9 ईयर्स मैंने स्टार्टिंग में काम किया एंड आई ग्रू इन दिस कंपनी. उस 9 ईयर्स में व्हाट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी, लर्निंग एवरी फेज ऑफ लाइफ. क्योंकि Excellent. जब तक आप अपने लिमिट को पुश नहीं करोगे, बिकॉज याद रखिए, हम लोग क्या करते हैं कि अरे बड़ा कंपनी मिल गया, हम लोग सोचते हैं कि वहां पे सेटल हो जाए, एक 10-15 साल 20 साल बड़ा कंपनी में काम किया. फॉर मी सेटलिंग वॉज अ सेकेंडरी. फॉर मी द ग्रोथ वॉज इंपॉर्टेंट. Yes. So in 9 years of career, I had a phenomenal journey. I worked with all the top celebrities at that time. Mr. Amitabh Bachchan, I worked with Shah Rukh Khan. You name it, all the top guns that time. From 2000 to 2009, I had a great experience and I'm blessed because ऐसे opportunity काफी rare लोग को मिलता है with no education background. Yes, and you are that lucky one. Thank you so much. Thank you. Yes. What was the reason you decided to start your fitness journey, and how did it transform into something entrepreneurial? So मुझे मालूम था ये क्वेश्चन आप पूछोगे. मैं कभी मीडिया छोड़ने नहीं वाला था. वही. मेरा कभी मीडिया, बिकॉज आई वॉज डूइंग सो ग्रेट फॉर माई सेल्फ. और जैसे मैं बताया, मैं 9 साल कॉर्पोरेट में था, स्टार टीवी में था. आई नो ईच एंड एवरी वन, राइट नाउ स्टार टीवी इज अ नंबर 1 चैनल अक्रॉस इंडिया. और जब मैंने 9 साल काम किया, एक 2009-2010 में रिसेशन हुआ, ग्लोबली रिसेशन हुआ. कपल ऑफ लोग उसमें से रिसेशन में जॉब निकल गए थे. एंड जैसे जॉब निकल गया था, 1 ईयर मैं घर पे बैठा हुआ था. अभी इस 1 साल में आई वॉज हंटिंग एवरीथिंग एवरीवेयर. मैंने बहुत सारी कंपनी में ट्रैक किया. लकीली आई गॉट वन, और एक चैनल जहाँ पे मैं काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड था, वॉज जी टीवी. सो जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी जी टीवी में मिला, आई वॉज शिफ्टेड टू बैंगलोर. सो बैंगलोर जाने गया मैं, एंड माई पोजिशन वॉज जनरल मैनेज. आई कैन से इट्स नॉट अ जनरल मैनेज, इट्स अ प्रोग्रामिंग हेड विच इज़ वेरी क्लोज टू एवीपी. Okay. Okay. So, but it was a South Indian language, Kannada language. मुझे कन्नड़ा समझता है, but I can't communicate. Okay. So, coming from Bombay and shifting to Bangalore for 1 year, it was a great experience because I always tell all the youngsters, अभी जो भी Gen Z करके है, you have to experience everything in life. Always experience each and everything. It's not what you like or what you dislike. It's all about getting out of your comfort zone. So, I step out from the comfort zone. मेरा घर यहाँ पे, and मैं जब वहाँ पे चला गया, 1 साल मैंने काम किया ड्यू टू सम रीजन ऑफ द कंपनी. और यहाँ पे आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिटेल, आई क्विट दैट जॉब. अभी वापस आई वाज जॉबलेस फॉर 1 ईयर. उस 1 साल में आई वाज गोइंग थ्रू विद लॉट ऑफ पेन, फाइनेंशियल क्रंच, एवरीथिंग गोइंग ऑन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आई हैड माई किड ऑल्सो. सो 1 ईयर जॉबलेस, जब आपके पास कुछ पैसे नहीं होते हैं, यू स्टार्ट हंटिंग हियर एंड देयर. एंड दैट टाइम ना 2 चीज़ मैंने समझ गया. एक, यू कांट कीप योर ईगो अप. Yes. आई एम वर्किंग एट दिस पोजिशन, आई वॉन्ट दिस पोजिशन. मैं अपने आप को डिग्रेड नहीं किया, बट आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब. मुझे आज भी कोई काम करने में शर्म नहीं है. लेट मी टेल यू वन थिंग, आई थिंक ये पहली बार मैं पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ. मैं, मेरी हालत इतनी खराब थी, मैं मुलुंड वेस्ट का मैकडोनल्ड में जॉब में इंटरव्यू देने के लिए गया था. आई हैड सच अ बैड सिचुएशन.
एंड पर फिर मैं सोचा फॉर मी आई इवन अप्रोच वन कॉल सेंटर जहाँ पे 12 मतलब नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए चालू था. आई सेड आई एम ओके विद एनी काइंड ऑफ पैकेज यू गोइंग टू गिव मी बिकॉज माई किड इज देयर. नाउ थिंग इज दैट आई थिंक गॉड इज वेरी काइंड टू मी उस मामले में बिकॉज मुझे हार्डवर्क की कोई शर्म नहीं है और मैं कोई भी कुछ भी काम कर सकता आज भी. फॉर मी एवरीथिंग इज रीस्टार्ट. Okay. Everything is restart. I will never look back because restart कौन करता है पता है मैं बताता हूँ. Who has nothing to lose? I have nothing to lose in life. For me, I can restart all over again anything. तो जैसे आपने मुझे बताया, आई एम वेरी लकी कि जैसे ही उस फेज में मुझे एक अपॉर्चुनिटी देखा विच इज कॉल्ड हर्बल लाइफ कंपनी. इट्स अ न्यूट्रिशन कंपनी, इट्स अ बिग कंपनी, 45 years old कंपनी. एंड जब उन्होंने देखा 3 things which really got attracted to me. One is health, which is very very important. Freedom of time. Yes. That is very crucial, very very crucial because आज के तारीख में मैं देखता हूँ लोगों के पास freedom of time नहीं है. Third, a quality of money what I can make through helping others. Yes. और now imagine एक 15 साल कॉर्पोरेट में काम करके ऑलमोस्ट AVP का पोजीशन में रीस्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन. दैट वाज वन मोर स्टेप फॉर मी. अगेन फर्स्ट स्टेप फॉर मी गेटिंग इनटू अ न्यू ऑल टुगेदर बॉल गेम. मतलब उसका मुझे कुछ संबंध नहीं है. मेरा एंटरटेनमेंट से न्यूट्रिशन का कुछ संबंध नहीं है. हाँ वही But तो for इसीलिए me- मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा. बिकॉज कभी कभी क्या होता है अलमै, हम एक दिमाग लेके आते हैं कॉर्पोरेट में काम करने वाले, आप भी कर रहे हो. हमको लगता है कि ये चीज अभी मैं नहीं कर सकता, हमारा एज हो चुका है. हाँ. बिकॉज 35 की उम्र में बट एज इज जस्ट अ नंबर. एज इज जस्ट अ नंबर. बट अगेन आप कोई भी एज में हो, आप में लर्निंग का या आगे बढ़ने का उतना दम है क्या? हाँ. हमको क्या लगता है नहीं यार, आई एम वेरी हैप्पी एट दिस एज नाउ, आई डोंट मुझे इस जगह से उस जगह हिलाओ मत. एक कंफर्ट जोन में आ गए. बट ग्रोथ कम्स फ्रॉम डिस्कम्फर्ट ओनली. डिस्कम्फर्ट. जब तक आप अनकंफर्टेबल जोन में नहीं जाओगे ना ग्रोथ होगा ना आपको रिजल्ट भी आएगा. भले आप हेल्थ को लो या कोई भी इंडस्ट्री में लो. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट बैक टू योर क्वेश्चन इज दैट मैं जब इंडस्ट्री में ये जब आने के लिए कोशिश करने से दिमाग मेरा यही चालू था कि लेट मी गिव अ ट्राई फॉर 6 months. ओके. नाउ व्हाई 6 months? बिकॉज इज दिस कप ऑफ टी फॉर मी और नॉट. हमको कभी कभी लगता है, क्या लगता है मैं नहीं यार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. कभी कभी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एज अ ह्यूमन बीइंग, वी आर स्टिल स्केयर ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स बिकॉज वी आर यूज्ड टू वन थिंग. वी आर यूज्ड टू बोला एक पर्टिकुलर. बट आई डोंट बिलीव दिस. यू नो दैट. आई नो दैट. या. हम ना कभी कभी वो प्रॉब्लम है. अगेन इट्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. Yes, इट्स इंडिविजुअल. it's आई एम नॉट very. कमेंटिंग ऑन, इसलिए मैं बता रहा हूँ डिस्क्लेमर है. ये जो भी मैं बोलने वाला हूँ इट्स पर्सन टू पर्सन. आई डोंट वांट एनीबॉडी शुड गेट ऑफेंडेड विद दिस पॉडकास्ट बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ मेरे थ्रू पॉडकास्ट से, आपके थ्रू से, वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू शेयर इज नॉट टू मोटिवेट एनीवन. मोटिवेशन 2 दिन चलेगा. आई वॉन्ट यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस माई जर्नी बिकॉज ये बहुत जरूरी है. एज ऑफ 50 हो, 40 हो, 30 हो, यू कैन एनी टाइम यू कैन रीस्टार्ट. लोग तो इंस्पायर हो गए राजेश सर, क्योंकि आप कुरियर बॉय से आपने जो जर्नी तय की है वो बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही मतलब आपके लिए वो बहुत पेनफुल होगा, लेकिन हमारे लिए डेफिनेटली दैट इज इंस्पिरेशनल. Can I add something over here? Yeah. For me, when I look back, I don't cry. Nothing is painful for me. I had an Oh. experience to share. ग्रेट. कल मेरी बेटी बड़ी होगी, she knows my story. कल मेरे ग्रैंडसन हो जाएंगे, I will share my experience. अगर मैं एक बात बताऊं, मैं MBA हूँ, मैंने इतने कंपनी में काम किया 30-35 साल, I have a good life, मेरे अकाउंट में इतना सारा पैसे, lavish. What experience? नथिंग. With this experience, somewhere who is going to start something new in life, जैसे आपने बताया फर्स्ट स्टेप, Yes. वो 10 बार सोचेगा यार ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. सो आई हैव फुल फेथ. हमें क्या लगता है, मैं सी व्हाई ऑलवेज आई बिलीव इन फ्यू ऑफ द पीपल. वन इज लाइक सचिन तेंदुलकर, वन इज रजनीकांत, या फ्यू अदर पीपल हु आर बिलियनर राइट नाउ. अंबानी कभी पैसे से आया नहीं बड़ा होके, उसकी जर्नी अलग है. सचिन तेंदुलकर मुझे याद है दादर में आज भी, जहाँ पे शिवाजी पार्क में जो प्रैक्टिस करता था. सो फॉर मी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट, बैक टू योर क्वेश्चन इज दैट कि ये जो जर्नी में एंटरप्रेन्योर जर्नी बना, 6 महीना मैंने अपने आप को टाइम दिया कि लेट मी ट्राई, इज इट पॉसिबल फॉर मी और नॉट. और जब मैंने 6 महीना पहला क्या किया, आई अंडरस्टूड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द हेल्थ. ये बिकॉज मैं शेट्टी हूँ, आई कम फ्रॉम द साउथ इंडियन बैकग्राउंड, हम लोग खाते पीते लोग के, अच्छा. तो खा पी के मस्त रहो, जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेट. ये कॉन्सेप्ट अपने हिंदुस्तान में है, जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेट, वो कॉन्सेप्ट है.
बट बिकॉज बोलते ना मुठी बुद्धि, हम लोग सुबह उठने वाले बंदे क्या है, शट्टी इडली सांभर चटनी, तुम ये दो, मुझे न्यूट्रिशन का एनबी लेना देना नहीं। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, 50 साल पहले हम लोग ऑर्गेनिक फूड खाते थे, अभी वो खाते नहीं है। तो कॉन्सेप्ट देखिए ना, मैं हमेशा कहता हूँ 2000 में इंटरनेट शुरू हुआ ग्लोबली, ओके, हिंदुस्तान में जब शुरू होते स्लोली शुरू हुआ, ऑल थैंक्स टू कोविड हमको जूम पता चला, जूम क्या है। आजकल हर हफ्ता हर महीने में नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए थिंग्स इवॉल्व हो रहे। आर वी अडेप्टिंग टू दैट न्यू थिंग? सो व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी आई थॉट लेट मी अडेप्ट टू दिस न्यू थिंग, and I given my 6 months of time and understood one. First thing is, boss, I can change my health. Step 2, what I understood, because मैं 12-14 घंटा मेरे corporate life में काम करता था, what is important, I have a freedom of time. I can choose my Sunday. I don't have to wait for Saturday, Sunday. I can choose whatever Sunday I want. मैं अपना वेकेशन खुद प्लान कर सकता हूँ, मेरे ऊपर बॉस कोई नहीं है। Yes. Third, I can choose how much money I want to earn for myself. My boss will not decide. सो एंटरप्रेन्योर का ये फायदा है, बिकॉज मेरे को महीने का चेक इंतजार करना पड़ता था, उसके बाद मैं अपना बिल्स पे करना पड़ता था। नाउ मुझे ये चेक के लिए वेट नहीं करना पड़ता था। एज एन एंटरप्रेन्योर, यस, इट टुक मी 11 years टू प्रूव माई सेल्फ, यू नो दैट इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी, ओके। कभी कभी वो फेज आ जाता है वेर यू स्टार्ट गिविंग अप, वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ये तो बिकॉज ये पॉडकास्ट में पूरा बता नहीं सकता हूँ, पूरी फिल्म बन जाएगी, बट वो 11 साल में ऐसा फेज आया था, मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, अपने आप एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बिकॉज क्यों मालूम है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कब आता है मालूम है, व्हेन यू वर्किंग इन 15 years ऑफ कॉर्पोरेट, और जब एंटरप्रेन्योर बनते सबसे पहला घर वाले पूछते तू सही कर रहा है क्या? हाँ। व्हाट एवर डूइंग, यू आर डूइंग इट राइट? यस। तू इतना अच्छा कंपनी में काम करने वाला बंदा, तू ये कर रहा है, तू जाके न्यूट्रिशन बेचेगा, फिटनेस के बाद फिटनेस का एफ भी मालूम है क्या? वो सवाल ना पहले अपने पे आने से पहले वो लोग हम पे पूछे, देन वी स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्फ। बट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एज एन एंटरप्रेन्योर और एनीबडी वांट टू स्टार्ट अप समथिंग न्यू, बिलीव इन योरसेल्फ। Yes, That is very, why I'm very so happy for you is that you believe in yourself. yes, मैं हमेशा एक चीज बिलीव कर, सुनो सबकी, करो अपनी दिल की, yes. ये बहुत जरूरी है। लेकिन फैमिली भी इम्पोर्टेंट, Family फैमिली बहुत बैकग्राउंड या फिर फैमिली सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट वो बहुत है, बट अगर आपको नहीं मिले तो क्या करोगे? आई एम नॉट सेइंग यू फाइट फॉर इट, यू फाइट विद योर फैमिली, बट कैन यू यू जस्ट कैन कन्विंस एंड गिव अ टाइम लिमिट। Yeah. अभी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, 11 साल जब मैंने दिया, मैंने पहले ही बात अपने आप को टाइम दिया। राजेश, इफ तेरे को 1 साल का टाइम मैं खुद दे रहा हूँ, अगर तू 1 साल में नहीं कर पाए, नाउ यू हैव टू स्विच, बिकॉज एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू मनी। डेफिनेटली You have to take care of your family, you take care of a lot of other things. Without family support, you can't do it. But sometimes when your family is not with you, if they don't believe, because क्या है, आप कोई विजन देख रहे हो और आपका फैमिली वो विजन नहीं देख रहा है, क्या करोगे आप? नहीं, You think big. You always think. I try to convince. That's all. Do you respect your family who are always supportive with you? I know your family is always supportive, but आप अभी एक you are blessed कि आपको ऐसी फैमिली जो नहीं है, जो ये पॉडकास्ट देख बोले यार तो अब क्या करोगे आप? मेरे ऐसे फैमिली बहुत सारे लोग बोले, राजेश जिधर भी जाता है, मुझे नाम नहीं लेना है वो बंदे का, मेरा फैमिली मेंबर ने बोले, राजेश जिधर भी जाता है वो कंपनी बंद हो जाता है। अभी इधर भी गया, ये कंपनी बंद करके आए। ये मेरे फैमिली मेंबर ने बकायदा मेरी माँ को बोला है। तो सोचो, मेरी माँ, माई स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इज माई मॉम। ही ऑलवेज बिलीव कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ करेगा, घर का बड़ा है, घर का हमेशा बड़ा। आई नो वॉट हार्डशिप माई मॉम स्पेसिफिकली गॉन। नाउ वाई, जो भी मैं कर रहा हूं आज, फर्स्ट आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ, सेकेंड टू फैमिली। मुझे दुनिया को नहीं प्रूव करना है। इफ 11 years, if you think I'm eligible for this podcast, that means somewhere I proved myself. Yes, definitely. That is very important. Allah. Definitely. You're getting me? Yeah. Now, when I told my mom कि mom, I'm going for the podcast, she was very happy. Now, मेरा बेटा फेमस हो गया, मतलब मैं टेलीविजन में नहीं आ रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट में आ रहा हूँ. So she doesn't know what is podcast. I said I'm going for the interview. So you think somewhere I am valuable right now. Yes, so first of all, thank you for definitely. you. Many people want to be fit but feel confused with so much information online. What are the most common lifestyle mistakes you see people making today? ऑनलाइन की बात कर रहे हैं ना. पहली बात, ऑनलाइन में अगर आप फॉर एग्जाम्पल ट्राइंग टू इंटरनेट में जाइए, गूगल में आपको 10,000 चीज़ मिल जाएगा टू बी बीइंग फिट. आज के तारीख में GMT डाइट, GST डाइट, जो आप डाइट बोलो सब डाइट मिल जाएंगे. आर यू आस्किंग टू द राइट क्वेश्चन टू द राइट पर्सन? प्रॉब्लम क्या है, मैं आपके आज की तारीख में बताता हूँ. पीपल डजंट वांट टू,
बोलते हैं ना थोड़ा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं, सब कुछ। और मैं बोल रहा हूँ ना, कोविड के बाद लोग ना इजी हो चुके हैं, वर्क फ्रॉम होम चालू हो चुका है, एवरीबडी इज रिलैक्स एट होम, ऑल द इन्फॉर्मेशन, ऑल थैंक्स टू गॉड, सब इंटरनेट दे रहा है अभी तारीख में, चैट जीपीटी भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। मतलब अगर आपको किसी को कुछ थैंक यू भी बोलना है इन स्पेनिश लैंग्वेज में, सब कुछ आपको एआई में मिल जाता है। सो इट्स बिकम वेरी इजी नाउ। बीइंग हेल्दी and going to the right person is a two different thing. Now what I suggest to each and everyone is that point number one, पहले आप देख लीजिए हेल्दी रहने के लिए आप कितने एक्टिव है। फॉरगेट आस्किंग टू द वन क्वेश्चन, मतलब एक बंदे के पास जाके आप जिम में जाओगे, मेंबरशिप वो पहले वो छोड़ दिए, पहले यू वांट टू बी फिट और नॉट, फर्स्ट आस्क दैट थिंग। नहीं तो कोविड के टाइम पे ना लोग हर चीज कर रहे थे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हल्दी का पानी, आधे लोग तो घर पे डॉक्टर बन गए थे। हाँ, कोविड के टाइम में आधे लोग डॉक्टर बन गए थे। मतलब एंड ट्रस्ट मी, ऑनेस्टली आई एम सेइंग दैट कोविड के टाइम पे जितने लोग फिट थे ना, अभी वो फिट नहीं है। दैट इज अ स्टैटिस्टिक बाय द वे फ्रॉम द डॉक्टर, फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे थे कोविड के टाइम पे जितना लोग इम्यूनिटी, जितने लोग टाइम से लोग खाना खा रहे थे, डाइट पे रूटीन फॉलो कर रहे थे, वो क्यों नहीं अभी हो रहा है। आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा था ना। और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो नुस्खा जब कोविड में चल रहा था ना, ये हल्दी का दूध, इसका पानी, उसका पानी, ये पूरा 50-60 साल पुराना का कॉन्सेप्ट है। यस, ये कैसे आप फॉलो करें? सडनली व्हाट हैपेंड राइट नाउ? नाउ बैक टू योर क्वेश्चन इज दैट थिंग, इंफॉर्मेशन बहुत सारे चीज मिलेंगे, इज इट गुड? आस्क योरसेल्फ, इज इट राइट? इट इज राइट? सेकंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर गूगल में आप ये डालो वर्षा केजले, पहले कोई गूगल कभी आपको गुड फीडबैक देगा नहीं राजेश शेट्टी के बारे में या वर्षा केजले का, पहले नेगेटिव देंगे। आदत है इंफॉर्मेशन ऐसे ही डाल देते लोग, बिकॉज गूगल है ना, गूगल सब बताता है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैप, गूगल मैप अगर आपको मुझे एक डेस्टिनेशन दूसरा डेस्टिनेशन पहुंचाएगा, वो बोलेगा यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, बट हमको मालूम है चोर गली यहाँ से भी है बॉस, वो गूगल मैप क्यों नहीं बता रहा है? सो व्हाई वी डिपेंड ऑन गूगल और इंटरनेट और एनी काइंड ऑफ थिंग? फर्स्ट स्टेप नंबर वन इज दैट गो टू द राइट पर्सन इफ यू वांट टू फिट, बिकॉज जो सर्टिफाइड कोच है या फिटनेस हेल्थ कोच है, ही नोज योर बॉडी प्रॉपरली, उसको पता है आपको क्या देना है या आपसे क्या निकाल के लेना है। पहले आर यू रेडी विद दैट थिंग? यस, वी कैन एक्सपीरियंस। अभी सब लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आई डोंट हैव टाइम। मुझे एक बात बताइए, एज अ वर्किंग क्लास पीपल, मोस्ट ऑफ अस राइट नाउ, हमारे पास 24 घंटे और हमारे पास एक ही प्रॉब्लम, आई डोंट हैव टाइम। हाउ दिस मिलीनियर एंड बिलियनियर, दे हैव आल्सो गॉट 24 आवर्स, हाउ दे रिमूव दैट टाइम फॉर 30 मिनट्स? उसमें से एक है बिरला, ओके, उनका आप वीडियो देखो यूट्यूब में, पॉडकास्ट है उनका सर, ही मेक इट श्योर 30 मिनट्स योगा प्राणायाम, अलग सा वो करता है, किक बॉक्सिंग, बहुत सारे वर्क, ही मेक इट श्योर कि मैं सुबह का 30 मिनट्स का वर्कआउट मैंने ले दूं मैं। इफ यू वर्शिप योर गॉड, योर बॉडी इज टेम्पल। यस, दैट इज मोर अगर आप इम्पोर्टेंट। 30 मिनट अपने लिए नहीं ले रहे हो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आज के तारीख में ऐप में ना घर बैठे बैठे 15 दिन में आपको 4 किलो दे देंगे। अरे बट अगर आपका अर्थराइटिस प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम है, घर बैठे बैठे कैसे करोगे आप? यस, अन्ना, मुझे एक ये बात भी पूछनी थी, आपको कुछ अर्थराइटिस था? ये Absolutely. उसके बारे में भी कुछ हाँ, जानना चाहेंगे हम। तो ड्यूरिंग कोविड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ पर्सनल चैलेंजेस, मेरा बीपी बहुत शूट हो गया था। ओके, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक पहले से, बचपन से। बिकॉज मेरा अर्थराइटिस इतना मेजर हुआ, मेरा हाथ डिफॉर्म हो गया। अगर आप देखोगे मेरा नॉर्मल 2 हाथ नहीं, ये हाथ मेरा टिल्टेड टू द राइट साइड। जो बंदा सिग्नेचर या लैपटॉप चलाता आज के तारीख में मैं 20% कर सकता हूं मैं, बट आई कैन डू 100 to 200 पुशअप राइट नाउ। जो बंदा, दैट्स ग्रेट। नाउ व्हाट इज दैट? ये आपका विल पावर है, दैट्स योर विल पावर एंड योर पॉजिटिव माइंडसेट। नाउ व्हाट हैज चेंज मी, उस दौरान पे मैं ऑनलाइन बैच लेता था एंड आई ओवरवेट बाय ऑलमोस्ट 18 kgs हो गया था। नाउ व्हाट वाज माय मोटिवेशन या इंस्पिरेशन टू कम बैक? बिकॉज जब मैं अपना लोगों का फोटो देखना शुरू किया जिनको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, आई सेड राजेश एक टाइम पे तू इनको ट्रांसफॉर्मेशन दे, तूने खुद का हालत देखा है क्या? मैंने अपने आप को लिटरल मिरर में देखा जहाँ पे मेरा पेट निकल आया था। आई सेड दिस इज अ हाई टाइम। It took me 1 year, and for everyone, if you're going with lot of health challenges, the thing what I'm trying to tell you is that उसको आप ना रोते हुए बोलते ना, I can't do this, I can't do that. Why? At the age of 45 right now I am, if I can fight back this thing, anything in this life, you can fight back. Yes, अगर आप में definitely. वो विल पावर एंड पॉजिटिव माइंडसेट हो, जैसे आपके हस्बैंड, उनके एज अभी है मुझे पता है, बट द वे वो एनर्जेटिक
अन्ना मैं ये कर सकता हूँ, अन्ना वो कर सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट इंस्पायर्ड, अरे इनको दे, पर हमको डर क्या लगता है, एक दिन भी वो वर्कआउट मिस नहीं हाँ करते, मैं एक इतने दिन साल से भी। देख रहा हूँ उनको, Yes. जबकि है उनको चैलेंजेस एंड आई डोंट वांट टू टेल हिम, बट द वे ही डू पुश अप, द वे ही इज रेडी, ही चैलेंज टू द यंगस्टर्स। और Yes. कभी कभी मैं हमारी कोच है रीमा, उनको ही बोलता हूँ, द वे हमारे क्लब में इतने लोग आते हैं ना, एंड आई ऑलवेज टेल देम, ये बंदे हमेशा फिट रहते हैं, मतलब ये उनको कुछ भी बोले करने के लिए इट्स रेडी। नाउ उनको बोल सकते आई एम रिटायर्ड, आई वेल सेटल्ड लाइफ, व्हाई द हेल शुड आई डू दिस? सो नाउ यू डोंट नीड गूगल, यू नीड द सेल्फ डिसिप्लिन। उठो, तुमको गूगल की जरूरत नहीं है। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज दैट एटलीस्ट आप सुबह उठ के वॉक कर सकते हो गार्डन में, वो भी नहीं, उसके लिए गूगल चाहिए आपको इंफॉर्मेशन। फिट ट्रेन, मैं बताता हूँ, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, हमारे ग्रेट पेरेंट्स जो आप भी बैठे हुए, उनसे पूछो तभी गूगल था, हाउ दे वर फिट, दिन में 3-4 बार खाते थे, टाइम से सोते थे। ऐसा क्या हुआ, मैं बताऊँ ऐसा क्या हुआ? ऑल थैंक्स टू आवर लाइफस्टाइल, Yes. बिकॉज वी हैव स्टॉप डूइंग दैट। हमने क्या किया है, बिकॉज हम ये क्वालिटी ऑफ लाइफ में आ रहे, अभी ये हमने मैनेज कर लिया। सोशल मीडिया, कभी मुझे याद है हमारे एज पे 8-9 बजे हम सोते थे, हमारे पास 2 ही चैनल था, DD1 DD2। सोशल लाइफ क्या था हमारा, हम बाहर जाके लोगों से मिलते थे। आज की तारीख में हस्बैंड उधर बैठा है, वाइफ इधर बैठा है, बच्चे इधर बैठा है, 3 लोग मोबाइल पे, Yes. और सारा इंफॉर्मेशन, अरे आज ये पुशअप करते, आज वो करते। अरे तू कर रहा है कि तू वीडियो देख के इंस्पायर हो रहा है? आर यू डूइंग योरसेल्फ? It's reality. मुझे एक बात बताइए, अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग ओपिनियन लेते? नहीं, गूगल का ओपिनियन तो नहीं गूगल का लेंगे। नहीं लेते, बट क्या करते हैं हम लोग, एक डॉक्टर के पास जाके वो क्या बोलेगा कि बॉस आपको इसको सर्जरी है, नाउ व्हाट वी दे, ठीक है डॉक्टर ने बोला, कैन वी टेक अ सेकंड ओपिनियन? Yes. सेकेंड ओपिनियन हम जब देखते हैं, हम भी गूगल में चेक करते ही है कि अच्छा कार्डियो का बंदा कौन है या हार्ट सर्जन कौन है, बट अगेन डू वी बिलीव दैट थिंग, और वी क्रॉस चेक विद अ फैमिली मेंबर, कोई अच्छा हार्ट सर्जन है क्या? जब हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और जब वो बोलता है कि आपकी इसकी जरूरत नहीं है, ये थोड़ा मेडिकेशन में ठीक हो जाएगा, एंड वी दैट, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू ऑलवेज टेक अ सेकंड ओपिनियन व्हाट एवर डू इन लाइफ।